بھارتی جارحانہ عزائم خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ، شہری آبادی کو نشانہ بنانا اور مقبوضہ وادی میں نہتے عوام پر ظلم ناقابل قبول، انڈیا کو مؤثر جواب ملنا چاہیے، پاک فوج ملکی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ کورونا سے مزید 19 افراد جاں بحق، اب تک 346 اموات، ملک بھر میں 15,759 شہری متاثر، پنجاب 6,061، سندھ 5,695، خیبر پختونخوا 2,313 اور بلوچستان میں 978 کیسز، 4,052 مریض صحت یاب۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کا 39واں روز، صوبے میں مشروط اجازت کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا پلان، طبی ماہرین اور انتظامیہ سے مشاورت، وزیر اعظم سے رابطے کے بعد حتمی اعلان متوقع۔ محدود ہیں تو محفوظ ہیں، پنجاب میں لاک ڈاؤن برقرار، کہیں پابندیوں پر عمل درآمد تو کہیں دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی، لوگوں کا مٹر گشت، شہر شہر سڑکوں پر رش، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی۔ اسی کے لیے پی آئی اے کا اہم اقدام، اب کوئی پائلٹ یا ملازم ڈیوٹی سے انکار نہیں کر سکے گا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں لازمی خدمات ایکٹ لاگو، نوٹیفیکیشن جاری۔ عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول 20 روپے 68 پیسے اور ڈیزل 33 روپے 94 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز، اوگرا کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال، وزارت خزانہ حتمی فیصلہ آج کرے گی۔ ناب ترمیمی آرڈیننس کے معاملے پر اہم حکومتی اجلاس ہفتے کو طلب، آئینی معاملات اور قانونی ماہرین کی رائے کا جائزہ لیا جائے گا، اپوزیشن رہنماؤں اور اتحادی جماعتوں سے رابطوں پر بھی مشاورت ہوگی۔ امریکی پولز میں صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی برتری، ٹرمپ کا جو بائیڈن اور بیجنگ میں گٹھ جوڑ کا الزام، کورونا کو ہینڈل کرنے سے ثابت ہوتا ہے چین مجھے ہرانا چاہتا ہے، امریکی صدر۔ نئی دلی سے تعلقات میں دراڑ یا کچھ اور، وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر پر بھارتی صدر، وزیر اعظم اور انڈین سفارت خانے کو انفالو کر دیا، راہل گاندھی نے امریکی اقدام کو خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اردو سائنس کالج کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد کی جی او آر کالونی سے لاپتہ 6 سالہ بچی کی لاش برآمد، مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، گرفتار ملزم سے پولیس کی تفتیش جاری۔ شعیب اختر کے الزامات، تفضل رضوی کا سابق کرکٹر کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ، بیان مایوس کن، سابق فاسٹ بالر نے انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے، پی سی بی کا رد عمل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بھارت کے جارحانہ عزائم خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم اور آزاد کشمیر میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے، پاک فوج مادر وطن کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ، بھارت کے جارحانہ عزائم خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑا خطرہ قرار، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت کو مؤثر جواب ملتے رہنا چاہیے، سپہ سالار کی ہدایت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر موجود افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و جبر اور آزاد کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ کی تعداد 346 ہو گئی ہے، متاثرہ افراد 15,759 تک
पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 6061, जबकि सिंध में 5695 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2313 केसेस सामने आए हैं। बात की जाए बलूचिस्तान की तो ये तादाद 978 हो गई है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी का प्रोग्राम भी बना लिया है, जबकि कारोबारी सरगर्मियों को मरहलावार महदूद इजाज़त देने पर भी गौर जारी है। जबकि मावन खुसूसी माहिद यूसुफ कहते हैं कि आइंदा 2 हफ्तों में 7500 बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। सिंध में कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से मुशावरत जारी है। सिंध हुकूमत ने मशरूत इजाजत के साथ कारोबारी और अवामी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला कर लिया। लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी से मुतालिक वजीर आला सिंध हतमी ऐलान करेंगे। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सूबे में लॉकडाउन खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सबसे पहले अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहते हैं, उसके बाद कारोबारी सरगर्मियां SOPs के तहत शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। अभी ऑनलाइन कारोबार जारी है। तो कोरोना वायरस के वार पूरे मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। मजीद 19 अफराद जान बहक हो चुकी हैं। ये तादाद अब 15,000 से भी तजावुज़ कर गई है। जबकि मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन भी जुज़वी तौर पर जारी है। कहीं कारोबार में नरमी की गई है तो कहीं SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है। जबकि हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम दिए गए थे उन पर अमल दरामद भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो लॉकडाउन भी जारी है, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस की जो वो 346 हो गई है और मुतासर अफराद 15,000 से तजावुज़ कर गए हैं। पंजाब सबसे ज़्यादा तादाद है, पंजाब में 6061, सिंध में 5695, खैबर पख्तूनख्वा में 2313 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की, वहाँ पर लोग कितना इसे फॉलो कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कराची से मौजूद है हमारी नुमाइंदा सालिया फिरोज खान। सालिया, बताइएगा, अवाम को कहा जा रहा है कि वो घरों तक महदूद रहें तभी वो महफूज रह सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अवाम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। आज शहर कायद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पहले दिन से ही, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पहले दिन से ही आवाम को यही कहा जा रहा है, हिदायत यही दी जा रही है कि घरों में महदूद रहें। महदूद हैं तो महफूज हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची के शहरी जो है घरों में महदूद रहने को तो पहले दिन से ही तैयार ना थे। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी हमें मामूल के मुताबिक ही देखने में आई। पहले दिन से ही इस तरह ट्रैफिक की रवानी थी। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि मामूल के मुताबिक यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ जो है वो रवा दवा है। इसके अलावा जो लॉकडाउन हमें सख्त नज़र आया सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ जुम्मे के रोज़ ही नज़र आया। अब जो अगर हम बात की जाए तो सड़कों पर जो नाके लगाए गए हैं, जिसमें से रेंजर्स पुलिस और ट्रैफिक हैं, वो अपने जो है फ़राइज़ जो है बाखूबी तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। वो शहरियों को रोकते हैं, पूछते हैं और साथ ही साथ उनको हिदायत भी करते हैं। कुछ हमने देखा कि कानूनी कार्रवाइयाँ भी हुई, कुछ शहरी थे उनके साथ कार्रवाई भी की गई, रोका गया, उनको पूछा गया। खैर, ये अगर अब बात की जाए लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पहले दिन से ही देखने में आ रही है। इसके अलावा अगर हम रक्शे की बात करें, रक्शा ड्राइवर्स की बात करें, तो उन्होंने तो लॉकडाउन के तकरीबन जो है वो धज्जियाँ उड़ाई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सवारियाँ लेकर सड़कों पे रवा दवा रहे, जिसकी वजह से केसेस भी दिन ब दिन बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए। आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों में जो हमने केसेस देखे हैं वो 300 से ज़ायद केसेस सिर्फ कराची के रिपोर्ट हुए हैं। और सिंध भर की अगर बात की जाए तो सिंध भर में 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से कुछ जो है मरीज़ जो है वो सेहत याब भी हुए, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि केसेस जो है वो बढ़ ही रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। सेहत याब भी हो रहे हैं मरीज़, लेकिन साथ ही साथ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। सालिहा साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आप बताएगा लाहौर की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, लाहौर की सड़कों पर भी जो हमें सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है वो तकरीबन इसी से मिलती जुलती है, जिसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसा कि आमतौर पर एक ख्याल है कि हर चीज़, कारोबार बंद है, दफातर बंद है, इसके बावजूद सड़कों पर एक ख़ासा रश नज़र आता है, जिसका अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि पुलिस की जानब से जो दादो-शुमार जारी किए गए हैं उसमें गुज़श्ता रोज़ तक तकरीबन 2100 से ज़ायद FIR दर्ज हो चुकी हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर जब से जुज़वी लॉकडाउन शुरू हुआ है, जबकि तकरीबन 7300 से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हुई हैं, जो कि डबल सवारी की खिलाफ वर्जी और गाड़ियों में ज़्यादा सवारियाँ बैठाने पर जिनके इल्ज़ामात हैं।
तो एक ऐसी सूरत नज़र आ रही है जिसमें इंतज़ामिया अपने तौर पर इकदाम कर रही है, लेकिन आवाम की जानब से एक रवैया जो अपनाया हुआ है शुरू से कि थोड़ी सी गैर संजीदगी नज़र आती है, वो अब भी मौजूद है। पंजाब में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, और पंजाब में अगर देखा जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, और लाहौर एक गढ़ बनता जा रहा है इस वायरस का। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर हमें रश उसी तरह नज़र आता है। अब जो नया शेड्यूल दिया गया है पुलिस की जानब से, उसमें शाम 4 से 5 और रात 8 से 9 इंतहाई सख्त लॉकडाउन कहा गया है कि जिसमें किया जाएगा, और इस दौरान किसी को भी गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और लोगों से पूछा जाएगा, और अगर कोई गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों में फिरता हो तो वापस घर भेजा जाएगा। तो हुकूमत को थोड़े थोड़े सख्त इकदाम करने पड़ रहे हैं लोगों को इस चीज़ पर आमादा करने के लिए, वो घरों तक रहें, महदूद रहें और महफूज रहें। बिल्कुल ठीक है। आवाम की गैर संजीदगी को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ औकात कार में सख्ती भी की गई है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से आपने अपडेट किया, और कराची से सालिहा फरोज खान आपने अपडेट किया। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम का ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी और माइक्रोसॉफ्ट के सरबरा बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल पैरा होना है, जबकि मुश्किल वक्त में इमदाद पर बिल गेट्स फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं।